कड़क न्यूज। कड़क सवाल, हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल कदम, कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जोंटा फाउंडेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ताज होटल में संपन्न हुआ, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के अलावा मीडिया जगत के लोग एकत्रित थे, जहां पर महिलाओं और बच्चों को लेकर उनके हित में काफी बातें बताई गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ अंकित मिश्रा की, ताज होटल, मुंबई, महाराष्ट्र से। Good morning, Fernanda. A warm welcome. And we are very happy and privileged to having you here. And I know it's early morning in Italy, but we are very grateful and appreciate that you are joining us for the press conference. We are having the press conference right now, and after the press conference, we are going to have the district board meeting. So, Fernanda, are we audible to you? Yes, greetings from London. I hear you loud and clear, and I can also see you. That's great. That's great. Sir, will you have the volume, please? Yeah, more. Especially here. Okay. Yeah, thank you so much. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome from Zonta District 25 to all our friends from media, press and social media platforms. I'd like to start by introducing the ladies and gent on the dais. Joining us virtually is District Liaison Zontian Fernanda Gallo Fresci from Italy. Buongiorno, madam, and thank you for joining us so early in the morning hours. Governor Zontian Eric Alavia from India. Parliamentarian Zontia Dilruba Ahmed from Bangladesh. Past District Governor Zontian Shehnaz Nathani from Sri Lanka. Lieutenant Governor Zontian Srijana Rana from Nepal. Today marks the beginning of the 3-day event of 16th Zonta District 25 Conference. Zonta District 25 is celebrating its Pearl Anniversary year. This conference aims to deliberate together on our Zonta goals, to understand root causes related to issues of women and girl child, and to endeavor for equal opportunities, new opportunities, which is our conference theme. I'd like to call upon our friends from the media to introduce themselves and their publications. Do you want to start? Hello, good morning everyone. I am Sonal Kala from Kadak News Network. Sorry, you open. Sorry. Mr. Kapadia. Good morning, friends, and congratulations for such a brilliant initiative. My name is Seema Lokesh. I worked for the Internet Express for 8 years, but I started my venture called Remarkable, which is a platform for stories of sense and not sensationalism. And I truly believe in it. And my brand is called Remarkable with a purpose, because it's all about meaningful content, and I'll be very happy to be associated with doing some special stories for you. Thank you and have a good day. This very shy gentleman next to me is Mr. Kishore Kapadia. He handles Gujarati press like Janmabhoomi, Divya Bhaskar and such. Is Mumbai Samachar also. Sir. मैं अंकित मिश्रा न्यूज फर्स्ट नेटवर्क से आया हूँ। Yes. सर टॉकिंग हिंदी। Yes. बात कर सकते हैं all. सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंटा फाउंडेशन है, ये मूलतः क्या उद्देश्य है, इसका कार्य करने का मूलतः उद्देश्य क्या है, और एक किन किन देशों में कार्य कर रहा है, और दूसरे क्वेश्चन हमारा है कि ये शिक्षा जगत में किस प्रकार से कार्य कर रहा है।
Yeah, no, he's saying that what is the Zonta, उसका उद्देश्य क्या है? What is the purpose of Zonta? And which countries is it associated? What countries work is being done in Zonta? Okay, Zonta का उद्देश्य ये है, जैसे हमने बोला है कि जितना हो सके इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ओके, उस पे हम ज्यादा जोर देते हैं। नो टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अत्याचार, स्त्री अत्याचार के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। और बाल विवाह जो हमारे देश में बहुत प्रभावित है, चाइल्ड मैरिज जो कहते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैं, हमारे जोनशंस के जो मेंबर्स थे, हम जोधपुर गए थे और वहां पर हमने 5000 बच्चों को, लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप, उनके शिक्षक, उनके स्कूल के प्रिंसिपल, वहां पे 5000 लोग, मई का महीना था, 50 डिग्री लगभग गर्मी थी, ककड़ी धूप थी, वहां हमने सबको शपथ दिलवाई कि हम ये शपथ देते हैं कि अगर हमारे माँ बाप हमें किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती करे हमारी शादी करवाने के लिए, हम से नो, बस बहुत हो गया, इनफ। और ये स्टॉप, नो, बहुत हो गया, इनफ, ये एक नारा, जैसे एक क्लैरियन कॉल है, स्लोगन है कि एक बार एक स्त्री ने कह दिया नो, स्टॉप, इनफ, इसका मीनिंग होता है कि वी मीन बिजनेस, नो मीन्स नो, ओके। तो ये सब चीजें करते हैं। जोंटा का जो प्रभाव 102 साल पहले जो शुरू हुआ बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ था 1919 में, तब से हर एक देश में, प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड में, ये माना जाता है कि जितना प्रभाव रोटरी का है, लायंस का है, उतना जोंटा का नहीं है। बट धीरे धीरे अभी लोग जानते हैं कि जोंटा क्या है, क्योंकि रोटरी ये लोग सब यूनिवर्सल चीजें करते हैं। हम लोग ज्यादातर स्त्री हक के लिए जो हमारी लड़ाई होती है, और लड़कियों के लिए उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनके अगेंस्ट जो अत्याचार होता है, उनके बारे में जो हम इश्यूज, जो मुद्दा उठाते हैं, वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप लायंस बोलो, रोटरी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं उठाता जितना ये मुद्दे जो है, जो इश्यूज है, जो जोंटा उठाती है। तो हमारे वहाँ 89 कंट्रीज है पूरे देश में जहां पर जोंटा क्लब्स है, और यूरोप पूछो, अमेरिका पूछो, यूएस, एशिया में है, साउथ अमेरिका में है। तो ये जो वर्क है, गोल्स हमारे यूनिवर्सल है, हमारा जो मकसद है एक ही है, पर हर एक कंट्री, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वो इश्यूज को टैकल करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जगत में क्या योगदान है? शिक्षा जगत में, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले या पैनलिस्ट ने कहा कि लड़के और लड़कियों को, दोनों को शिक्षित करते हैं कि इज्जत कीजिए, एक एक का आदर कीजिए, और खास करके पैंडेमिक में जहां बच्चे खास करके मेंटली अफेक्ट हुए, जैसे हमने कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो अभी अभी नया, या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका में, इफ यू अग्री विथ मी, ये नई नई चीजें अभी आई हैं। वेस्ट में तो पहले था मेंटल इश्यूज क्या है, आज अवेयरनेस ज्यादा, जब पैंडेमिक के बाद जो लोग अफेक्ट हुए वो अवेयरनेस ज्यादा हुआ है। तो बच्चों के लिए भी ये शिक्षा देते हैं बचपन से, जो हमने जी क्लब चालू किया है स्कूल बच्चों के लिए, गोल्डन जी क्लब चालू किया है कॉलेज बच्चों के लिए, कि जितना हो सके एक एक को इज्जत दीजिए, आदर कीजिए, और जो हमारा जोंटा मिशन है, जोंटा गोल्स है, वो उसी टाइम हम बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं, ठीक है। आपने पूछा क्या प्रभाव है जोंटा का सोसाइटी के ऊपर, तो ये प्रभाव है कि जो जहाँ जहाँ जोंटा है वो दिखा रहा है कि औरतें और मर्द सेम समान, और नौकरी में समान। तो और जहाँ नौकरी में अब लड़के लोग को इंटरव्यू होते हैं, लड़की लोग का होते हैं, तो क्या होता है
देखा जाता है कोई लड़की लड़का से भी ऊंचा है, मगर डिस्क्रिमिनेशन, ये लड़की है ये नहीं सकेगी, और 2 दिन बाद इसका शादी होगा, बच्चा होगा, शादी होगा, बच्चा होगा, ऐसा नहीं सकेगी। तो मर्द का क्या बच्चा नहीं होता है? उसका भी तो डैडी है, तो उसका भी तो काम बन जाता है। तो क्यों हम लोग करेंगे जो एक मर्द जिसका एजुकेशन औरत से कम है, मगर औरत का दूसरा और प्रॉब्लम देखेगा, तो ऐसा नहीं होता। जोंटा का प्रभाव है मर्दों को और औरत को सेम लेवल में लाने के लिए। इसके लिए हर दुनिया में हमारा जितने जितना जगह में जोंटा है, हम आवाज करेंगे, मेरा आवाज जोर के आवाज करेंगे that we are women, we are achievers and we want to survive in the same status as a man does. तो ये होते होते इक्वल राइट। आप अगर जमीन खरीद सकोगे तो औरतें क्यों नहीं सकेगा? उसको ये पावर देने के लिए जोंटा का प्रभाव है, पावर अंदर, एक औरत का अंदर जो पावर है उसको निकालना, वो जो टैलेंट है उसको निकालना करके समान करके दोनों मियाँ बीवी या दोनों भाई बहन या दोनों जो भी है साथ साथ एक साथ चलेंगे। ये जोंटा यही सिखा रहा है पूरा पृथ्वी को, जो वुमेन राइट है ह्यूमन राइट। वुमेन का अधिकार अलग नहीं है, पुरुष का अधिकार अलग नहीं है, हमारा अधिकार है एक, मगर एक जगह एक है। जो लड़की को आधा प्रॉपर्टी मिलेगा, लड़का को पूरा प्रॉपर्टी मिलेगा। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, अभी हम लोग सोशली मांग रहे हैं जो सब समान होगा, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। ये प्रभाव को लोग मांग रहे हैं ग्रास रूट लेवल से लेके, जैसे मैंने कहा जो जोधपुर का बात कहा, ग्रास रूट लेवल से लेके एकदम हाईएस्ट टू द प्रेसिडेंट लेवल। देखिए आप कमला हैरिस को, कहाँ कभी अमेरिका में हुआ कोई औरत वाइस प्रेसिडेंट? अब सामने देखिए, अब औरत भी प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े औरतें, ये लोग अपना वॉइस दिया है, हम लोग को मोटिवेट किया है। हम लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी का है, मगर आज हम लोग घर से निकल के बाहर में प्लेकार्ड लेके बोल रहा है मर्द और औरत समान। यही है जोंटा का प्रभाव। सर एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, आई थिंक ये हम लास्ट क्वेश्चन कह देंगे, बिकॉज टी ब्रेक के बाद हमारा ये भी है कॉन्फ्रेंस मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग। बोलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना का एक महामारी का दौर चालू है, तो इस दौर में जोंटा फाउंडेशन ने क्या कार्य किया प्रमुख रूप से? जोंटा ने बहुत कुछ किया है इसके बारे में। हाँ, जो आपको जो प्रेस किट दिया हुआ है उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जोंटा ने, जैसे हमारे पास डीजी ने कहा कि हॉस्पिटल्स जो इलिक्विड थी, माने हॉस्पिटल्स में जो सामान नहीं थे, बिकॉज जब कोविड आया पहले तो कुछ महीनों तक डॉक्टर्स को खुद पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जितने पहले पेशेंट्स आ रहे थे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ठीक हो रहे थे या कोई ठीक नहीं हो रहा था। बाद में जब रिसर्च हुआ, बाद में डिटेल्स हुए कि भाई ये दवा चलती है, ये दवा चलती है, टेस्ट एंड ट्राई दवाओं के बाद कुछ महीनों के बाद मालूम पड़ा कि कोविड क्या है, तब स्थिति सामान्य हुई और स्टेबल हुआ। तो जैसे श्रीलंका ने 7 मिलियन रुपीस, श्रीलंकन रुपीस उन्होंने इकट्ठा किए, उन्होंने कलेक्ट किए और हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स दिए। हमने भी बॉम्बे में यही किया हुआ है। काफ़ी कुछ हॉस्पिटल्सों में, खास करके म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में और काफ़ी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चीज़ें नहीं थी, वो हमने दिया थी। सेम थिंग हाई फ्लो कैनोला बहुत हॉस्पिटल में नहीं थे, अगर हम लोग सब जोंटा से हम लोग हाई फ्लो कैनोला दिया, बांग्लादेश में सब कंट्रीज में सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपीपी, हजार हम लोग दिया, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट्स, फीडिंग
कितने लोगों को खाना खिलाया है, राशन दिया हुआ है, ओके, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो जोंटा सिर्फ स्त्री और मर्द के लिए नहीं है, बट ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। सिटी में एरियाज लिए हैं, वार्ड्स लिए, जहां उनको रिहैब कर सकते हैं, उनका खाना पीना पालन पोषण सब जो पेंडेमिक से अफेक्टेड है उन सब का हमने उद्धार किया है। यस, पैसे दिए हैं, नगद पैसे दिए हैं। जिसको नौकरी नहीं, मेरी नौकरी चली गई है, नगद पैसे दिए हैं ताकि कोई रात को भूखा सो सके, और कोई पैसे भी हो तो कुछ गलत नहीं करे, चोरी डकैत कुछ नहीं करे। ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। और अभी मैं प्रेस से अनुरोध करता हूं कि जो आज आपने सुना, what you have heard, I request the press to help us create more visibility of Zonta. Through you, you can spread across this message about Zonta in your press, in your blogs, in your channel, so that more and more people are aware what Zonta is, and help us to make Zonta more visible, not only in our 4 countries in District 25, but in the entire world. Okay? I would just like to make a mention. I mean, for us, the awareness, actually, maybe my colleague and my friend Akshay Mason came for Diana, and you have been the brand ambassador for them. So, you know, it's a shocker that you guys do such great work, magnitude of such magnitude that we weren't aware. So, good luck to you all, and probably, yes, we can do something together. Sure. And it's also the media who actually carries our message forward. So thank you so much. Yes, I'd just like to add, because when Eric said, Diana, I need you to do this press conference for us, I said, yes, absolutely, I'll be here early in the morning. But I said, today what we require is, the call for the day is social media. So, yes, we have a lot of oldies and our Zontians, but we need the young ones to come in also. And also when the young ones are coming in, we need the social media to be there, and the right channels to want more young ones to come in. So today blogging, Facebook and the other, Twitter and whatnot. Instagram, yes. So these are the channels which we need to push more and more. So that's why I invited my friends. I said you have to come, have a look and see what we are doing, so that maybe, you know, 2 people will talk to 4, 4 will talk to 8, and that's how we are going to multiply more and more. I would like to add something as the web IT master of District 25, that yes, the social media is extremely important. So as we talk today, whatever has happened in this room was live on our page. So whoever was on our page has been able to be a part of this, what we are doing. We are working very hard, and we need help from everybody to show our presence and to showcase exactly what we are doing. Thank you, Governor Eric, for giving us this chance. And we are on Instagram, we are on Facebook, and we have a very, very active website. Thank you. Last thing before, I know you are rushing off, but just felt that I wanted to let you all know that I think Zonta thus far has been the best kept secret, and the world now needs to know about you guys more. So I think we need to go for it, and I think you all are doing a fantastic job. I mean, you can't even, I don't even know, I've got goosebumps just listening to what you all do. And like I said, 100 years, 30 years, we're celebrating the Pearl celebration in, in our club, and we don't know about it. So I am so happy that I'm here. And thanks Diana for inducting me into this fantastic movement, which you rightly said, we talk to 4 people, 10 people, and the movement goes on, and before you know it, it's going to reach the world. So the best kept secret is now going to be out of the bag, and hopefully we get more of us into the fold. It will be like Coca-Cola. Fantastic. Like Rolex. Mercedes. That's what Zonta is going to be. Fabulous, and I'm into this. Thank you. We need to keep the
positivity going on. 100%. Positive in everything that we do. Thank you, ladies and gentlemen on the dais. Absolutely. I take this opportunity to thank our friends from the media and social media platforms for attending this press conference and for the coverage that you will provide for our District 25 conference and Zonta International. I thank the members on the dais for addressing the media and getting our Zonta goals and ideals out there. And I welcome everybody to join us for a short high tea and the media friends to collect a small token of our appreciation at the end of it. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you very much, Laila. Thank you very much for putting up such a great press conference. Thank you. नमस्कार, मैं सोनल कदम, कड़क न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ ताज होटल गोल्डन रूम में। है कि महिला हिंसा उसको स्टॉप करना है और महिला के हक उसको इसके लिए लड़ना है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसमें भी हम लड़ते हैं और महिला के बाल विवाह और एजुकेशन शिक्षा में भी बहुत ज़रूरी है। ये 4 शीर्षक में हम काम करते हैं। स्कॉलरशिप और वो 63 कंट्रीज़ में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसका अवेयरनेस एडवोकेसी हम करते हैं और महिला ने सोसाइटी में थोड़ा इम्पैक्ट किया है, थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उसको भी हम कदर करते हैं। मैम, इसी देश में है कि अदर कंट्रीज में और कितने देश में चल रहा है? जोंटा 63 कंट्रीज में है। जोंटा एक इंटरनेशनल महिला एसोसिएशन है। ये अमेरिका में है इसका हेड ऑफिस और 63 कंट्रीज़ में इसका क्लब्स है। सो जो काम हम करते हैं 63 कंट्रीज़ में वही काम जो महिला के लिए हम करते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 25, उसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। अब ये चारों कंट्रीज़ पड़ोसी देश है, तो कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी सामान्य होते हैं, काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ, अभी जो पैंडमिक में जो इश्यूज चालू है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर उसका हल ढूंढते हैं, उसका कुछ इलाज ढूंढते हैं, ताकि जो कुछ भी किसी के पास भी हल, इलाज हो, जो कुछ भी सोल्यूशन हो, वो हर एक कंट्री अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटरमेंट देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं कुछ परसेंट होती हैं कि जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये जो महिलाएं जो अधिकार का दुरुपयोग करती है वो कभी कभी उनके पर्सनल रीजंस के वजह से होती है कि कभी दे वांट टू बी किसी के साथ, दे वांट टू बी इवन विद समबडी, ताकि वो बदला कैसे उठे। बिकॉज अभी जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो महिलाओं के हक के लिए काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं। बट मैं सबको यही अनुरोध करता हूँ कि जो आपको ये जो हथियार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप इस हथियार को सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसके हित में इस्तेमाल कीजिए। आपकी इज्जत जो है समाज में वो और बढ़ाइए, पर इसका दुरुपयोग मत कीजिए, वो संभालना पड़ता है। धन्यवाद। और एक विनती है मुझे विनती करनी है प्रेस से और आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। हमारा जोंटा का जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाइए, उसको लोगों तक पहुंचने दो। पहुंचना ऐसा है कि हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, लोग जो हमें मदद करें, और हमको उनके पास भी पहुंचना चाहिए जिसको मदद चाहिए, दोनों वे से चाहिए। तो जब जोंटा ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा तब दोनों तरफ से हमें सब कुछ दोनों तरफ से हमें फ़ायदा हो सकता है। आम जनता जो है जोंटा फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकता है, ज्वाइन कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा जोंटा फाउंडेशन फेसबुक पे है, वो लिंक हम आपको दे देंगे, और हमारी वेबसाइट है, और
हमारा बॉम्बे का भी ऑफिस है यहाँ पे, तो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम किसी को दे सकते हैं। अगर कोई भी है जो हमारा जोंटा फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है, और हमारे फाउंडेशन से अगर किसी को कुछ भी चाहिए वो भी हम हेल्प दे सकते हैं। बोथ द थिंग्स संस्था से जुड़ने के लिए प्रक्रिया क्या है, मतलब वो प्रक्रिया है, फॉर्म भरना है, 1-2 मीटिंग्स में आना है और देखना है कि जो हम जिस तरीके से काम कर सकते हैं वो आपको सूटेबल, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सो वो हम एक्सप्लेन करेंगे when serious people want to join us। कार्यालय कहाँ पे आपका? ऐसे कोई फिक्स कार्यालय नहीं है। जैसे मैं गवर्न तो मेरी स्कूल में होता है, तो हमारी स्कूल में जो आगे आ सकते हैं स्कूल में बात कर सकते हैं, और जो हमारे दूसरे क्लब के उनके घरों में भी होते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स ऑफिस या कार्यालय नहीं होता है, बिकॉज हर 2 साल गवर्नर का रोटेशन होता है वैसा। थैंक यू सर। आज हम यहाँ पे झोंटा फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन में आए थे। हम बात कर रहे थे, मैम आपका? फरीदा लुकमान जी, मैं फाउंडेशन एम्बेसडर। यस, सो मेरा फाउंडेशन जो है वो औरतों और बच्चों के लिए बहुत काम करता है। इट्स इंटरनेशनल फाउंडेशन जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ है और अभी 63 कंट्रीज़ में चल रहा है, और आगे भी हमें ज़्यादा कंट्रीज़ में और इंडिया में भी हमारा ज़्यादा प्रभाव बढ़ाना है। ये लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन में 100 इयर्स में पहली बार ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ Zonta International, male governor of Zonta International. So I think he has made India very proud. Thank you. Thank you. नमस्कार, मैं सोनल कदम। चलते चलते कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। अभी आप देख रहे थे मुंबई के ताज होटल में झोंटा फाउंडेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैमरा पर्सन फहीम के साथ मैं सोनल कदम, ताज होटल, मुंबई, महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।